Ladies and gentlemen, I request everyone here to keep their applause up for the founder of Beat for Beat, an example for the upcoming generations, and he was the Beat Grand. Hi everyone, very good afternoon. First of all, really thank you for all this overwhelming welcome. Really appreciate that. And before I begin, I would like to thank all the organizers here for organizing such a great event. All these things look very well organized. We got invitation long back. Everything was well planned. There was a car waiting at my office at right time, and everything is scheduled and planned perfectly well. So great work, all the organizers here. So in this talk, I'll be talking about how to prepare for interviews. I think that's what we are all interested in India, right? Unfortunately, because ideally we should be interested in skill building or entrepreneurship. But unfortunately, the kind of setup we have, we are mostly are for jobs. And I would not blame you guys for this because I was also like you. In 2004, when I did my engineering, and I did my engineering from the same university, Abdul Kalam Technical University. Guys, we were the first batch of this university, and there was this vice chancellor at that time. He decided to change our university, and he decided कि सारे पेपर बाहर IIT से चेक होंगे और सारे पेपर सेट भी IIT से होंगे. So I remember when I did BTech in 2004, there were 87 students in my batch, and out of those 87, only 5 students did not have any backlog. Right? Only there were 5 students, and our college director used to come and used to ask who are those 5 students. I used to feel very proud standing up among those 5 students who did not have any backlog. So this is how I started from the same university where you are studying right now. After BTech, I did go to IIT Roorkee for MTech. And how did all this begin? Like every other engineering student, school में पढ़ाई की. स्कूल में टॉपर ने बोला यार आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ मैं तू भी कर ले so that is how I went for IIT G preparation. Spent 2 years. In those 2 years, dreamt about IIT, even visited one IIT, and felt heartbroken when I did not get IIT and ended up in a tier 3 engineering college where we did not have any placement. After that, I went to IIT Roorkee, and IIT Roorkee में placement बहुत अच्छा था जैसा आप लोग जानते हैं. वहाँ पे 100% से ज़्यादा placement होता है, बहुत सारे कंपनी आते हैं. But again, if you ask me, I always wanted to be teacher. And जैसा जैसे मैंने बोला इंडिया का सेटअप है, सैलरी बहुत ज़्यादा थी, कंपनी ने विजिट किया, जॉब लग गई. I joined that job, right? I joined that software job. Although I did not enjoy it because I always wanted to be a teacher. So while I was working in the software company, I started this blog on Blogspot at that time to fulfill my passion of teaching. I wanted to be a teacher, and I used to get time on weekends, so I used to write articles. And this is how DShop started. And after working with DShop for 2.5 years, I joined a teaching job again. And that was the toughest decision I took in my life because my salary went down, and you can understand the difference between that job and this job, right? The salary after tax deduction get 10-15,000 rupees per month down, and I was married by that time. And when I decided to leave that job, at that moment my wife told me that we are going to be parents, right? After resignation, after 1 or 2 days of resignation, right? So it became even tougher for me. Anyway, so that's how my story has been, and I'll talk about. Let's talk about interview preparation now. Guys, see, when you prepare for these top tech companies, you need to first thing that you need to do is you need to understand their interview process, how they hire. So, how many of you already know like what is the typical process of these top tech companies like Amazon, Microsoft, and all the startups that you see like Google, Ola, Swiggy? How do they hire? What is the process? How many of you know it already? Like, what is the first round like? Coding round, right? And that's where most of the students are filtered, right? So these companies typically take the first round as coding round, and that's the most critical round. Because if you qualify the coding round, then there are many other things which come into factor like आज इंटरव्यू का मूड कैसा है, वो कौन से क्वेश्चन पूछता है वो वाला इंटरव्यूअर. फेस टू फेस राउंड में बहुत सारी चीजें लक पे और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं. लेकिन जो पहला कोडिंग राउंड होता है वो आपके हाथ में होता है.
आप कितनी अच्छी तैयारी करके आए हो उस राउंड के लिए। और अगर मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं, जब 2004 में मैंने बीटेक किया था, तो ना तो गीक्स और गीक्स था, ना इतने सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स थे, ना इतने सारे रिसोर्सेज थे कि जहां से हमें तैयारी कर पाते। So you guys are fortunate to have all these resources. You can utilize them to qualify that coding round, right? And how do you prepare for these coding rounds? You have all the interview experiences available online, right? So what you all need to do is make sure your problem solving skills are good, right? And once you feel like that you learn data structures, algorithms up to a certain level, and you learn the problem solving, go through the interview experiences, right? And try to solve the questions in the first round, right? That's where most of the candidates are filtered. So it's like this: if there are 1,000 students that participate in the first round, 100 to 100 students typically get selected, right? So that's the most critical round. And after that, as I said, it's all luck, right? Or not all luck. I mean, it's all other factors, right? So how do you prepare for the first round? Learn data structures and algorithm, then go through the interview experiences and try to solve the first round questions yourself within the given limited time, the time given by companies, right? If you are able to solve those questions within the limited time, then you've learned enough, right? And try 10-15 interview experiences. And if the interview experience says that you were supposed to solve them in 1 hour, then try to solve them in 40-50 minutes, right? Because in the pressure environment, you need some 10-15 minutes extra, right? And if you have learned enough and if you started solving those interview questions, then you are employable. You can crack those companies, right? But if you're not, then go back and do more and more practice, right? And जितने भी companies होते हैं, they don't ask very super hi-fi questions. They don't ask data structures like segment tree and all the advanced data structures. They all ask basic data structures only. They ask arrays, linked list, binary tree, binary search tree, stack queue, all these standard data structures only. That is all you need to learn, right? And I would say if you are in first year, then start learning these data structures right away, right? Data structures and standard algorithms as well, like searching, sorting, dynamic programming, greedy algorithm. Start learning them from the first year itself because it's not very easy to reach the employability level, right? If you go and try solving those questions, बहुत आसान लगते हैं देखने में, लेकिन ऐसा कोड लिखना जो सारे टेस्ट केस क्वालिफाई कर दे उस प्रेशर एनवायरनमेंट में इजी नहीं होता है, राइट? सो स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड डोंट वेट फॉर द एकेडमिक्स कि सर जब एल्गोरिथम पढ़ाएंगे क्लास में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब मैं कर लूंगा. डोंट वेट फॉर द टाइम. Many of the top programmers they begin very early, right? So begin early, and whatever time you begin, start practicing and learning both. Many students they make this mistake that they only solve the questions or they just learn, और वो ऐसा करते हैं कि यार 2 महीने पढ़ लेता हूँ पहले फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, राइट? डोंट गो फॉलो दिस पाथ. या फिर पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब लर्न कर लेंगे. Try doing both the things. Try learning and practicing at the same time, right? And while you are preparing for, so this is about the first year, right? First year को जल्दी जल्दी start कर देना चाहिए. Many of you might be in third year and you might be wondering like, what should I do now? So guys, अगर first year में कर लोगे आप लोग, तो आप enjoy करोगे बाकी engineering. एक बार आप employability level तक पहुंच जाओगे, right? The most important thing in engineering is to reach that level where you are employable, you are able to solve these top tier companies in questions in 50 minutes. And earlier you reach, better for you. Then you can enjoy rest of your engineering, right? You can enjoy whatever you like. You can enjoy open source, you can enjoy Android development, you can try entrepreneurship as well. But you are employable now, so you can do whatever you like. You can even party more. But if you reach third year, and if you are not at that level कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या आपने भी डीएसए इतना पढ़ा नहीं है, then you already enjoyed your engineering, right? Now you need to give more and more time to this, right? If the first year student is spending 3-4 hours, then you probably need to spend 6-7 hours really to learn DSA, because this is what is going to get you a job. And if you have spent enough time and if you start not learning it, then probably you don't need to focus on tech hirings. It's not your domain, right? Then don't unnecessarily spend time on something which you're not enjoying, right? Maybe try to figure out what you actually want to do. Whether you want to be a marketing person or a sales person or something else, you want to be an entrepreneur, try doing something else. But if you want to get into the top tech companies, you will have to have the problem solving skills. And guys, whatever branch you are from, there is a popular LinkedIn quote that I saw recently by someone which says that
divided by streams and united by IT industry, right? So the kind of market we have, most of the non-CS people or everybody, they all prepare for tech jobs only or IT jobs only, and their paths are very much described. You know, all the YouTube channels here, like Striver, all the people who are here, right? They all have all the content and geeks or experiences. You get to see all the content available online, and whatever they say, it all is perfect. You know, you can follow these channels, you can follow the interview experiences. These resources are very much helpful, and you can use them to reach that level. And guys, you're fortunate to have these resources. If you compare my time, it was unfair game. हमारे टाइम पे क्या होता था कि किसी का बड़ा भाई Amazon में है, किसी का बड़ा भाई Google Microsoft में है, उसको पता है कि क्या पूछ रही है कंपनी। कुछ क्लोज ग्रुप होते थे जिसपे वो क्वेश्चंस बता देते थे, कुछ लोगों के फ्रेंड होते थे। जैसे मुझे याद है कि जब IIT रुड़की में डी शो में मेरा प्लेसमेंट होने वाला था, तो फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड था दूसरे IIT में, उसको मैंने बोला फोन करके, यार क्या कंपनी पूछती है, क्या राउंड होता है, उसने बता दिया कि पहले राउंड में यार ये पूछते हैं, दूसरे राउंड में तेरे से ये पूछेंगे, फिर एक फेस टू फेस होगा उसमें ये पूछा जाएगा। तो मुझे आइडिया लग गया कि क्या पूछने वाले हैं। वहाँ पे ऐसे चलता था हमारे टाइम पे, कोई ओपन रिसोर्स नहीं था। तो इसी की वजह से गीक स्टोरीज मैंने स्टार्ट किया था। बट आपके टाइम पे बहुत फेयर गेम है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना हार्डवर्क कर लेते हो, राइट? आप कितना हार्डवर्क करके उस एम्प्लॉयबिलिटी लेवल तक पहुंच जाते हो। और एक बार आप एम्प्लॉयबिलिटी लेवल तक पहुंच जाते हो और आप वो क्वेश्चंस करने लग जाते हो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, तो कुछ दो तरह के कोडर होते हैं टिपिकली जो मैंने देखे हैं। कुछ लोग तो उसको और ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, उनको डीएसए करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आने लग जाता है और वो अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड पाथ कि आप मजा आने लग गया आपको, आप लीडर बोर्ड पे और ऊपर जाने लग गए और आप और अच्छा करो। Because if you are a good competitive programmer, that increases your probability even getting into better companies, right? And guys, it's all probability game. Learn DSA कर लो, आप एम्प्लॉय कितने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के क्वेश्चन कर लो, हो सकता है फिर भी ना हो, राइट? और सोशल मीडिया पे इतनी सारी जो स्टोरी चलती रहती है कि आई गॉट प्लेस इन गूगल, आई गॉट प्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट। Guys, if you don't get placed, don't feel disheartened, right? Because जितने लोग जो शेयर भी करते हैं, I strongly feel like many of them must have been rejected 4 or 5 times before they got selected, right? That's the story with most of the people, right? So if you get rejected, don't feel disheartened. Rejections are part of the journey, right? And when you try anything or when you try for the software job, you are bound to get rejected. And from rejections, you learn a lot. So that's the journey. Make yourself employable. Learn data structures, algorithm really well. Try for companies. Even if you get rejected, try to next company. After 4 or 5 rejections, you will learn कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो. Maybe it might take 4 or 5 years in average. It might take more rejections or less rejections. But you will learn कि यार मैंने क्या गलतियाँ करी हैं, उससे probability बढ़ जाती है. It's again probability. ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका placement हो ही जाएगा, right? And there are many places where you see guaranteed placement. I would not believe in them, right? Because it's all probability. हो सकता है कि आप बहुत top coder हो, फिर भी आपका ना हो। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, उतनी आपकी probability बढ़ जाती है। अगर आपने 500 क्वेश्चन करे हैं तो आपकी probability कुछ और होगी। आप 1000 क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ी और probability बढ़ जाएगी, right? So it's all probability game. So more you practice, more hard work you do, more chances of getting placed into the companies. So guys, that is all. I'm open for the questions now. You guys can ask any question. I'm open for any sort of question that you have for interview preparation or anything about these or these. So peer learning is definitely important, and I would say pick a peer. That's my understanding. Pick a peer who is of your level, right? If you pick a peer who is better than you, that might cause difficulties. Or a person who is at lower level, pick a peer who is at your level and maybe slightly higher level. That would be better for you. And I mean, it's very easy to find peers these days. You can look around on social media. That's the advantage of social media, right? I would not say it's very difficult. You can even connect with your juniors or seniors. They must. So programming में यही अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि फर्स्ट ईयर वाले ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा या फाइनल ईयर वाला भूल गया होगा. Right? You can connect with even with the junior or senior batch or connect with the people on social media.
So you should be joining group. It always helps. You know, joining group, discussing the question where you are getting stuck. It helps a lot. And gives you discussing the question, discussing the solutions. It always helps. That's some of your experiences. So I'll tell you about my first experience of programming. A good question. I tried prime number question in the first year, right? And took me like 2 days to build the first program of prime number. बहुत सारे केसेस में वो चल रहा था, बहुत सारे केसेस में नहीं चल रहा था. And I think I discussed with lots of friends. जो मेरा रूममेट था मैंने उससे भी डिस्कस करा कि यार क्यों नहीं चल रहा इस केस पे, right? So that always helps. Sometimes I mean I didn't know like prime number में ये वाली कंडीशन इस कंडीशन भी डालनी है, जो पर्टिकुलर कुछ केसेस होते हैं, right? So that always helps. You get to know certain things from your peers. I mean it's always helpful. Sir, what were your experiences starting Geeks for Geeks, such a big organization, and what should be our mindset if we want to become an entrepreneur? See, if you ask me, my intention to start Geeks for Geeks was to just help the students. I wanted to be a teacher, not an entrepreneur. That was my idea initially, right? और मेरा थोड़ा ऐसा था कि मुझे बस टीचर बनना है. और मैंने टीचिंग भी कराई कॉलेज में 5.5 साल. पर वो टीचिंग करते करते तो इतना ग्रो हो गया कि मुझे लगा कि यार ये जस्टिफाइड नहीं है कि मैं अब टीचिंग ही करता रहूँ. आई शुड बी गिविंग इट मोर टाइम. So that's how my entrepreneurship journey started. It was just a passion for teaching, right? A problem that I saw among the engineering students. जब मैंने engineering कराया मैं तो बहुत struggle कर रहा था. ना तो कोई Geek Stories जैसा रिसोर्स था, ना YouTube चैनल थे, कुछ भी नहीं था. कोई भी आइडिया नहीं होता था कि कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करनी है. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का इंटेंशन था जब Geek Stories स्टार्ट करा था. ये प्रॉब्लम देखिए सॉल्व करा. और मैं एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता हूँ तो ये बोलूँगा कि यार बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ना यूएस यूके को फॉलो करते हैं कि यूएस में क्या बना रहे हैं लोग, यूके में क्या बना रहे हैं, या ये वाली यूएस बेस्ड कंपनी क्या कर रही है. हमारे इंडिया में लोकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप Geeks for Geeks का एग्जांपल देखो, इंटरव्यू की तैयारी करना या जॉब क्रैक करना यूएस के लोगों में चैलेंज नहीं होता है. उनको पता है कि जॉब लग जाएगी, डेवलप्ड कंट्री है. हमारे यहाँ वो बहुत बड़ा चैलेंज है. सो Geeks for Geeks would not have been successful in US probably. It's successful because of the problems that we have in India. Right? So try to build something around the problem that you see around you, right? And where you probably are part of. And you see the problem that people are facing, try to solve that problem. बाकी सारी चीजें आप जब कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, मेरा यार ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सब टाइम के साथ आ जाता है. आपको थोड़ी गलती करते हो, सीखते हो. अब मेरे को 12 साल में इतना सारा आ गया है, सब पता चल गया है अभी कि फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, सेल्स कैसे मैनेज करनी है, मार्केटिंग कैसे मैनेज करना है, एचआर कैसे मैनेज करना है. वो सब टाइम के साथ आप सारे स्किल्स सीख जाते हो. जब आप गलती करते हो, टीम का साइज बड़ा होता जाता है, सब टाइम के साथ लर्निंग होती रहती है. Could you please repeat the question? So the question is, what is the idea behind naming it Geeks for Geeks? तो guys, हमारे टाइम पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता था, ऑर्कुट. आप लोगों ने सुना है ऑर्कुट? तो जब मैं आईआईटी रुड़की में था तो मेरा फ्रेंड था आईआईटी खड़गपुर में, और उसने अपना उसका मैं जब फ्रेंड लिस्ट देखता था तो उसके प्रोफाइल पे बहुत सा नाम लिखा था गीक फॉर यू. मुझे वो नाम बहुत अलग दिखता था, फ्रेंड लिस्ट में सबसे अलग दिखता था वो नाम गीक फॉर यू. तो फ्रॉम देयर आई पिक्ड दिस नेम Geeks for Geeks. मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, गीक फॉर यू देखने में. Like you told us how to prepare for the interview round from first year. So are there any pre-preparations for the interview round from that we can opt so that we can improve our chances in the interview round? So उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स ऑनलाइन हैं. रिज्यूमे बिल्डिंग टिप्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो. साथ में थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, अपने सीनियर्स को इंटरव्यू दे सकते हो जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं. वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं इंटरव्यू राउंड के लिए. उससे आपके रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि एक बार आप मॉक कर लेते हो. आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप एक बार मॉक कर लो, जैसे मैं स्पीच देने आया हूँ, यहाँ पे टॉक करने आया हूँ, अगर मैंने एक बार मॉक कर लिया तो और अच्छी स्पीच हो जाएगी, 2 बार मॉक कर लिया तो और अच्छा बोल दूंगा मैं शायद यहाँ पर, राइट? सो इट्स ऑल लाइक दिस, राइट? आप मॉक कर लोगे तो फायदा मिलेगा आपको. Sir,
So for first year, have we learned the basics of a well-established domain? So it is better to explore the new domains like Web3 and blockchain, or go and master the established domain. आई वुड से कि आप पहले डीएसए अच्छा कर लो, एम्प्लॉयबल हो जाओ, फिर आपको जो मन करे वो करो आप, क्योंकि बहुत सारे फील्ड है, हर फील्ड में किसी फील्ड में आप अगर एक्सीलेंट हो जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आप किस ब्लॉकचेन है, कुछ भी फील्ड उठा लो आप, सब में डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आपका जो मन आए वो करो, जो आपको अपीलिंग लगता है। सब फील्ड्स में अपने अपने हर जगह अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएसए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जैसा हमारा सेटअप है इंडिया का, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल अपना भी लूँ कि मैंने डी शॉप की बस जॉब इसलिए कर ली कि सैलरी बहुत अच्छी थी, मुझे करना टीचिंग था, मजा टीचिंग में आता था, लेकिन जिस तरह से सेटअप है बस सैलरी अच्छी मिल रही है, ये ज्वाइन कर लो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि यहाँ पर जितने एंटरप्रेन्योर भी होते हैं इंडिया में, वो जनरली पहले जॉब करते हैं कुछ टाइम, राइट, पहले कुछ टाइम जॉब करते हैं, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट कंपनी, राइट। तो मेरा ये सजेशन है कि जॉब अगर हमारा ज्यादातर लोगों का प्रायोरिटी होता है, वो अगर हमारा प्रायोरिटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है डीएसए करना है। वो डीएसए करके आप एम्प्लॉयबल हो जाओ, फिर आपको जो मन आए वो करो, जो आपको अच्छा लग रहा है। Sir, sometimes we used to do several questions on DSA and we couldn't. So first approach is that we continue to do that question for 1 or 2 days, and second approach is that we quickly see the solutions. So sir, what is the average time to perform a question, or sir, what is the approach to do this? See, that's a big question. Should we see the solution or not? आई मीन आइडियली हमें नहीं देखना चाहिए, पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यार कि अब नहीं होगा और सोल्यूशन देख ही लेते हैं, तो देख लो, कोई इशू नहीं है। आप और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऑनलाइन, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि यार सोल्यूशन नहीं देखना है, तो आप एक बार अपने सीनियर्स या बेटर कोडर्स हैं उनसे एक बार अप्रोच पूछ सकते हो। जब आपको बताते हैं कि यार इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा लर्निंग हो जाती है वर्सेस डायरेक्ट सोल्यूशन देखने की। तो वो एक तरीका हो सकता है। बट सोल्यूशन देख लो, कोई इतना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से कि यार अब ये मेरे से हिलेगा नहीं क्वेश्चन, मैं सोल्यूशन देख ही लेता हूँ, तो देख सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को। अगर 5-6 के सोल्यूशन देख भी लिए तो सारे गीसवर्क्स से प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे 2000 क्वेश्चन है, और जगह भी बहुत सारे क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा कि आइडियली हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए देखना। और अगर हमें किसी दिन लग रहा है कि यार आज मैंने प्रैक्टिस करते करते बहुत टाइम बिता दिया और मेरी लर्निंग कुछ नहीं हो पाई, लगता है मैं कई बार कि मेरे को एक क्वेश्चन करना था डीएसए का, उसमें पूरे दिन लगा रहा लेकिन हुआ नहीं, तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है। तो उस डिमोटिवेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा एक स्टैंडर्ड पेज पढ़ लो किसी भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस देखो, उसके इतने अच्छे एप्लीकेशन हैं, ब्यूटीफुल एप्लीकेशन हैं। डिफ यूटिलिटी जो हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा यूज करते हैं, राइट, which tells you कि आप जो कोड प्रोडक्शन में डालने वाले हो, आपने जो चेंजेस करे हैं वो क्या हैं, राइट। वो डिफ यूटिलिटीज इम्प्लीमेंट इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलसीएस। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लो, विकिपीडिया पेज पे चले जाओ एलसीएस के। अगर आपको किसी डिमोटिवेशन लग रहा है, गीक स्टोरीज पे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, वो पढ़ लो। उसमें आपको मजा आएगा, लगेगा हाँ आज पढ़ लिया कुछ। अगर एक प्रॉब्लम फंस गए थे लेकिन कुछ लर्निंग हो गई, हमारा माइंड भी कभी सेटिस्फाइड होता है ना कि चलो सीख लिया, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो यू कैन फॉलो दिस आइडिया एज वेल। थैंक यू। सर जैसे मैंने कभी आज से 2-3 महीने पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन फिर अगर मैं उससे दोबारा क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझसे नहीं होता है, तो सर उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्रैक्टिस बनी रहे क्वेश्चन की? यार वो हो जाता है काफी सारे लोगों के साथ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वी नीड टू उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके रखो। आप स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं के वेरिएशंस होते हैं। आपसे थोड़े दिनों बाद नहीं हो रहा है तो प्रॉब्ली उसका रीजन है कि आपने वो बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है आपने वो उतने अच्छे से नहीं सीखा है अभी तक। वो प्रॉब्लम उस टाइम तो सॉल्व हो गई। तो स्टैंडर्ड जो एल्गोरिथम जैसे एलसीएस है, एलआईएस है, नेपसेक है, और जो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है उनके अगर आपको एप्लीकेशन पता है कि यार ये वाली प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल हैशिंग है कि मुझे पता है कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे बिग ओ वन में सर्च इंसर्ट डिलीट या इनके सबसेट चाहिए, तो मुझे हैशिंग यूज करना है। तो इस टाइप से हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर होना चाहिए स्टैंडर्ड एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को।
वो जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऐसा आएगा नहीं आपके साथ कि आप नहीं कर पा रहे हो दोबारा। तो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अच्छे से हमारा बिल्ड होना चाहिए। फिर भी आ रहा है प्रॉब्लम तो यार वो सबके साथ हो जाता है कभी कभी, वो कोई इतना मेजर इशू नहीं है, आप सॉल्व करते रहो। सर जैसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं और हमने सॉल्यूशन देख लिया है तो सर किस तरीके से हम लॉजिक लिखें कि नोट्स किस तरीके से नोट्स बनाएं कि इस क्वेश्चन में डाउट आया था तो हम ऐसे लिख लें? यार नोट्स में तो मैं पर्सनली बिलीव ही नहीं करता यार, नोट्स तो यहाँ होने चाहिए। नोट्स में तो मैं बिलीव ही नहीं करता। तो वो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करना है, कौन सा एल्गोरिथम कब यूज करना है। वो जितना क्लियर हो जाएगा हमारा टाइम के साथ उतना आप अच्छे हो जाओगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। First of all, good afternoon, sir. My question is your toughest topic in data structure and how to overcome this topic. So I think most of us would agree it's dynamic programming, right? So I mean dynamic programming is, I don't know, it's really tough. I mean, see dynamic programming में जो tough part में लगता है वो होता है recursive solution लिखना। एक बार recursive लिख गया फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो बस उसको मेमोराइज करके टेबल में स्टोर करके ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना बहुत मुश्किल होता है भाई। वो मतलब कई बार तो एंड से स्टार्ट करना है, कई बार स्टार्ट बीच से करना है रिकर्शन, कई बार कहीं से करना है, कई बार इस चीज पे रिकर्शन करना है। वो लिटरली थोड़ा मुश्किल होता है। और उसका एक सिंपल ये है कि यार सारे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है डायनामिक प्रोग्रामिंग के, उनको अच्छे से समझ लो। जो मैंने नाम दिए LCS, LIS, NAPSEC और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, रॉड कटिंग प्रॉब्लम। ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते, उनके वेरिएशंस बना देते हैं इंटरव्यू में भी। तो वो आपके माइंड में को सेट होने चाहिए। मैप करने की कोशिश करो कि यार ये वाला जो प्रॉब्लम आया है ये कौन से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से मैप हो रहा है, राइट? और उन प्रॉब्लम्स को उनके वेरिएशन जितने ज्यादा कर लोगे उतना आप ओवरकम कर पाओगे इस प्रॉब्लम को। डायनामिक प्रोग्रामिंग में रिकॉर्ड से लिखना इज रियली डिफिकल्ट। आई मीन इट्स नॉट इजी। So what should be there in our resume, particularly for cracking big companies? See, I think you might be aware of this already. If you are a good competitive programmer and if you have a good handle, you must mention it. Most of the tech companies, they look at your competitive programming handle on any website if you are doing well. If you have won any awards on any contest, you don't forget to mention them. They help you a lot. अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलेज प्रोजेक्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कैसे करते हैं लोग कॉलेज प्रोजेक्ट। लेकिन वहाँ भी आपने अगर कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो। बहुत डिटेल में मत मेंशन करो। कॉलेज प्रोजेक्ट कोई डिटेल में नहीं पड़ता, मतलब आप 1-2 लाइन लिख दो बस, उतना बहुत है। लेकिन आपका जो प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हैंडल है या ओपन सोर्स कम्युनिटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जरूर मेंशन करो। Sir, what are the prospects of freelancing for company? See, freelancing, I would say first begin with a job. If you are a student, then begin with a job, then go for freelancing, then explore the freelancing, because जॉब करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे आपको काफ़ी सारे लर्निंग हो जाते हैं उस फील्ड के, वो लर्निंग हो जाते हैं, फिर आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट आई वुड नॉट रिकमेंड फ्रीलांसिंग, लेकिन अगर आप ऐसा है कि फर्स्ट ईयर से कुछ करते आ रहे हो, राइट, और आपको एक्सपर्टीज हो गया तो आप कर सकते हो। There are many people who make a lot of money while they're student, right, and they do freelancing. Like GFG पे बहुत सारे लोग कंटेंट लिखते हैं, राइट, और बहुत सारे लोगों का कॉलेज फीस और सब कुछ कंटेंट लिख के ही हो जाता है। तो you can try anything of that sort. Sir, apart from helping students cracking a good company's interview, how Geek4Geek is helping the society and adding some good value to it? So guys, when I meet investors or I meet fellow entrepreneurs, they always tell me you are more of a philanthropist than a businessman, right? Because most of the courses that we do, they are the lowest cost, and most of the content that you see on Geek4Geek, it's all free, and we try to minimize the number of ads also. And we recently started the job portal as well, where as of now we are not charging anything to the companies. They just come to our platform, they post their jobs, and it's there on the Geek4Geek menu. You will find a menu. In the menu, you will see job. There you will see job portal. You will see jobathon. We always also do a contest monthly for freshers called jobathon.
where companies that hire freshers, they post their jobs, and we don't charge anything to the companies. We shortlist resumes for them, right? And freshers apply. We do contests for them, right? So all that is to help the companies again, right? And whatever we in अगर आप मेरे से बोलोगे कि हेल्थ सोसाइटी में हेल्प करने का, so I haven't even bought a flat yet, right? I still live in a rented flat, right? So guys, whatever money we make, we invest it back to help the people. That's how we have been working, and that's the idea. That's what idea has been from day one. Sir, so what has been an IIT degree get for you apart from placement, and is IIT Tech still relevant? See, IIT degree gave me a lot. Fortunately, if you guys are from KIED, you are from a very good college. KIED is a good college. मुझे याद है जब मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा था ना, तो AKTU में काउंसलिंग में गया था, तो KIED टॉप पे था उस टाइम भी, टॉप पे रहता था। मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ था यहाँ पर। मेरे लिए IIT बहुत बड़ी चीज़ थी यार, मेरे लिए IIT बहुत बड़ी चीज़ थी। मैंने वहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। और IIT में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ शायद। IIT में ऐसा नहीं होता कि प्रोफेसर बहुत स्पेशल पढ़ाते हैं या वहाँ के लैब बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कोडिंग करना सब कुछ ऑनलाइन है। इट्स जस्ट द स्टूडेंट्स दैट कम हियर, दैट कम टू दोज IITs, उनसे मिलके उनके साथ रह के आपका लेवल थोड़ा वही हो जाता है। आप जब मैं एमटेक कर रहा था वहाँ पे, जब आप एमटेक कर लेते हो तो आपको दिखता है यार आपका जो सीनियर था वो गूगल में है, किसी ने कोई स्टार्टअप कर लिया वो टीवी पे आ रहा है, राइट? किसी की स्टार्टअप की वैल्यूएशन कुछ हो गई है, कोई कुछ फोड़ रहा है, राइट? तो वो देख के अलग ही फीलिंग आती है। वो एक बहुत बड़ा फायदा होता है IIT जाने का, राइट? वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो 3 इयर्स में था ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। तो वो वाली फीलिंग आपको IIT में आती है जब आपके दोस्त बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपको एक प्रेशर आता है कि मुझे भी कुछ करना है। हेलो सर, जनरली अब बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए जैसे Geeks for Geeks, बहुत सारे यूट्यूबर्स की अपनी शीट्स है, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इसकी शीट करें तो दूसरी मतलब साथ वाला कहता है कि तूने वो वाली शीट नहीं की। तो हम अपने आप को कैसे मैनेज करें टाइम के साथ कि अच्छे क्वेश्चंस भी हो सके और टाइमली दिन में कितने क्वेश्चंस हम लोग करें? यार वो सारा प्रोबेबिलिटी है, मैं आगे नहीं बोलूंगा कि आप जितनी ज़्यादा शीट कर लोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने 500 क्वेश्चन करे हैं तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो, राइट? और आपने 800 कर लिए तो 0.6 0.7 हो जाए, और आपने 3-4 यूट्यूबर्स की SD शीट कर ली तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो यार वो ऑल प्रोबेबिलिटी है कि आप पे डिपेंड करता है। वो बिल्कुल फेयर गेम है आज की डेट में। तो जितनी शीट्स अवेलेबल है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल फेयर है। आप ऐसा कोई डाउट है ही नहीं। आप किसी एक यूट्यूबर की SD शीट कर फिनिश करके दूसरे की स्टार्ट कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि एक से ही हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल क्लियरली बोला कि आप कोई कोर्स भी कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है भाई उसके बाद भी हो जाएगा, 1000 के बाद भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपसे वो आपके दिमाग में चमके ही ना वो क्वेश्चन जो उसने पूछा ऑनलाइन राउंड में, राइट? तो वो प्रोबेबिलिटी है बहुत क्लियरली। Sir, if you want to design a website, so what should be the approach to begin with? Means what are the languages we should study or start with? वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तो आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। हमने वर्डप्रेस यूज करके स्टार्ट करा था, थोड़े बहुत ट्वीक करने से मुझे बस और वो सेटअप हो गई थी, राइट? एक वेब सर्वर सेटअप करना था और वो सारे ट्यूटोरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे फ्री इतने नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो सारे ऑनलाइन हैं। तो वेबसाइट के लिए आपको कोई सच बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी CMS यूज करके स्टार्ट कर सकते हो और आप 2 दिन में कर सकते हो। टूल्स ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ऑनलाइन। सर
So the question is, in my entrepreneurship journey, there must have been many moments where I must have felt like अब तो नहीं होगा. What kept me motivated, right? So guys, I mean, I always look at the overall picture. I mean, you're completely right. There are always moments where you feel like कि यार ये क्या हो गया, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये छोड़ के क्यों चला गया कंपनी, इसने ये क्यों कर दिया, और उस कंपनी ने ये क्यों बोल दिया, अब तो अच्छा कर रहे हैं. तो ये मोमेंट्स डेफिनेटली आते हैं, कई बार आप सेटबैक भी देखते हो, बट for me it was like always overall picture. If I look at the overall picture, I see the traffic coming in, people consuming our content, so that's what keeps me motivating. And overall picture देखते रहो, तो अगर वो अच्छी है तो थोड़ा बहुत तो आता रहता है. I mean, I can tell you examples कि GFG को हमारा इंटेंशन इनिशियली ये था कि हमें स्टूडेंट्स को हेल्प करना है हर तरह से. अब हमने कभी भी रिक्रूटर्स के लिए नहीं बनाया, लेकिन हुआ क्या कि रिक्रूटर्स यूज करने लग गए. अब रिक्रूटर्स भी भूल जाते हैं थोड़े दिनों में DSA, तो उनको कोई रिसोर्स मिल गया. तो अब स्टूडेंट से बोलते हैं यार, उन्होंने GFG का एक आर्टिकल खोला और स्टूडेंट से बोलते हैं यार इसको सॉल्व करो. अब स्टूडेंट हो सकता है यार कोई अच्छी नई अप्रोच बता रहा हूँ, एनलॉग एन में कोई दूसरी या कोई उससे भी अच्छी अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन रिक्रूटर को वही चाहिए जो GFG पे लिखा है. तो अब वो हो जाता है यार, वो सारे सेटबैक तो आते हैं जब आप कुछ बड़ा कर रहे हो, तो लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो कई बार आपका इंटेंशन नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा उससे अनइंटेंशनली हर्ट हो जाते हैं. वो स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं आपने GFG में इस आर्टिकल में लिख रखा है, मेरे से रिक्रूटर बोल रहा था यही वाली अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा था, एग्जैक्टली जो आर्टिकल में लिखा हुआ है. तो वी कांट हेल्प दैट, वो चीज़ें होती हैं, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो. सर माय क्वेश्चन इज दैट कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए, मतलब कितना DSA पढ़ लें तब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, या फिर दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा यार फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर लो, जितना और हमें तो स्कूल में ही कर देनी चाहिए. मुझे तो लगता है मैंने जो 2 साल अपने मैंने तो यार 2 साल अपने IIT की प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिया, वो भी नहीं करनी चाहिए थे, राइट? तो हमें जितना जल्दी से उतना जल्दी स्टार्ट करना है. I think we are done. I think we can take 1 or 2 more questions and then we are done. सर See, there is a particular book called Coreman book for DSA. I strongly believe every student should have this book and should read this book. This is like Gita of programming, right? How many of you have read Coreman book here? So there is a CLRS book by MIT professors, right? This is so well written book. I mean, see, it's like you follow that book and you learn DSA without any errors. Websites में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत error मिल जाए, या YouTube channels में भी आपको थोड़ी बहुत error मिल जाए. That book is completely error free, right? That's the advantage. Now, I would say don't book का एक अपना importance होता है आज की डेट में भी, और मैंने भी अपनी बुक से प्रोग्रामिंग सीखी है. उस बुक से और MIT का जो कोर्स है, जो वहाँ पे वीडियोज है, फ्री वीडियोज हैं. Even when I was teaching in engineering college, I used to refer those videos to teach, right? So that resource is super good. वेबसाइट्स में बस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल GFG को अगर कंपेयर करें कोरमैन बुक से, तो आपको एक कोड मिल जाता है, आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, और कई बार कोरमैन बुक को जैसे वो US के MIT के प्रोफेसर्स ने लिखी है, तो उससे कनेक्ट करना हमारे एज एन इंडियन स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल होता है, लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है हमें. तो वहाँ पर आपको वेबसाइट्स हेल्प कर देते हैं. आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ लो GFG को, उसका कोड रन करा के देख लो, दूसरी लैंग्वेज में देख लो, लेकिन उस बुक को आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू हैव. सही. Sir, first of all, namaste. Thank you for taking your questions, sir. Here, only on your right side. Sir, first of all, namaste. Thank you for taking your questions. I want to ask if there was any thought to be an entrepreneur in your initial days of engineering. Like, I'm in first year, what are the other things should I look out to be in this field other than skill development and academics? If you want to be an entrepreneur. Yeah. So, entrepreneurship में यार सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कंपनीज फेल होते हैं वो फाइनेंस की वजह से होते हैं. फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए फाइनेंस को अच्छे से.
लाइक कैसे जीएसटी वर्क करता है, कैसे जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या आपकी लायबिलिटीज होती हैं, क्या आपके प्रॉफिट में जाता है, क्या लॉस में जाता है, राइट। आई गिव यू एन एग्जांपल हियर। अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं ऑफिस लेने के लिए कि आप रेंट पे ले लो या खुद से बनवा लो, और बिल्डिंग का ओनर बोल रहा है कि यार तुम बनाओगे तो मैं तुम्हें 40,000 रेंट पे दे दूंगा और मेरे से बनवाओगे तो मैं 70,000 पे दे दूंगा, तो आपको लगेगा 30,000 का बहुत बड़ा गैप है, लेकिन यू शुड टेक द 70,000 वाला ऑप्शन। रीजन बीइंग कि आप जब रेंट पे ऑफिस में खुद से बनवाते हो तो आप जो चीज़ें खरीदते हो ऑफिस में, लैपटॉप खरीदते हो, एसी खरीदते हो, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें जो ऑफिस में खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, वो सारा एक्सपेंसेस में बुक नहीं होता। उस पर आपको डेप्रीशिएशन लगता है। तो जब बैलेंस शीट फाइल करते हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपके एंड में कंपनी में बैलेंस तो जीरो है, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 5-10 लाख की, जो भी अमाउंट है 10-15 लाख की, क्योंकि आपने सामान खरीद लिया उस पैसे के और वो एक्सपेंसेस में नहीं जा रहे, वो डेप्रीशिएशन में जा रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी कंपनी, आई थिंक देयर इज स्टडी दैट सेज 95% कंपनीज फाइनेंस की वजह से फेल हो जाती हैं। आइडिया आपको आ गया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, और थोड़ा मैं कहूँगा कि थोड़े थोड़े प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो बनाना। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के एंड टू एंड, ऐसा मत सोचो यार कि मैं 5 साल में इस प्रोडक्ट को बिल्ड करूंगा। कोई छोटा सा एंड टू एंड प्रोडक्ट बना लो, उसको कोशिश करो कि कुछ लोग कंज्यूम करें, उनका फीडबैक लेके रिफाइन करते रहो। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो मुझे सिखाया लगता है वो होता है परसिवियरेंस, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरा एग्जांपल देखो तो मैं 13 साल से कर रहा हूँ गिग स्टोरीज, राइट। आपको करते रहना होता है, ऐसा नहीं है कुछ और चमकदार फील्ड मिल गया तो ये छोड़ दिया, जीएफजी छोड़ दिया, चलो कुछ और करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट बनाओ एंड टू एंड छोटा सा, उसे रिवाइज करते हो, उस पर बहुत सारा टाइम दो, डोंट लीव इट इन द मिडिल। थैंक यू। So guys, rejections are part of the journey. I have handled so many. मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था कि मेरा आईआईटी में हो ही जाएगा, प्री में हो गया था, और मैं इतने खराब कॉलेज से इंजीनियरिंग किया तो वो पहला रिजेक्शन था। उसके बाद पता नहीं कितने रिजेक्शन हुए लाइफ में। बीटेक के बाद मैंने कॉल सेंटर्स की जॉब में अप्लाई करा, उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो वो पहली रैंक बोलते ही जाओ भाई। उसके बाद बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में भी अप्लाई करा था मैंने, मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था, तो मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में अप्लाई करा। वहाँ पे मुझे लगता था कि यार लोग 5,000 रुपये महीने की जॉब देते हैं बीटेक के बाद, राइट। वहाँ पे भी मैं रिजेक्ट हो गया था। तो रिजेक्शंस तो होते हैं यार, और अभी भी बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं। कई सारे एम्प्लॉइज हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि यार आपको ज्वाइन नहीं करना, राइट। रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ द जर्नी, वो चलता रहता है। हेलो सर, सर here. Good afternoon, sir. Sir, what is the how to learn DS? What is the whether it is important theoretical approach or practical approach in learning DS? Like, what is the most important? Like, I'm learning what is the type of recursion function, or I have to end up with coding of recursion. As I said, we should be doing both. See, खाली पढ़ने से या खाली क्वेश्चन करने से नहीं होगा, आपको दोनों करने होंगे। और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, साथ में क्वेश्चन करते रहो। क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो तो फिर से पढ़ो। आपको दोनों चीज़ें करनी होगी, मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई एक चीज़ हम करके, ना तो हम ये बोल सकते हैं कि आप 2 महीने पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ना ये कर सकते कि आप क्वेश्चन कर लेते हैं और बाद में पढ़ लेंगे। वी नीड टू डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स। प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना होता है, पढ़ने में तो कितना ही टाइम लगता है। आप आधे 1 घंटे में पढ़ लोगे पूरा चैप्टर, 1-2 घंटे, मतलब आप एक एल्गोरिथम तो पढ़ ही लोगे, राइट। लेकिन क्वेश्चन करने में आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो वो रेशियो हिसाब से मेंटेन करो कि 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटा पढ़ना है, ऐसा करके मेंटेन कर सकते हैं। देखो, अगर मैं मैथ्स, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इन प्रोग्रामिंग। तो देखो, अगर आपको केवल एक सर्टेन लेवल तक ही कंपनीज को क्रैक करना है इंटरव्यू, तो मैथ्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको बेसिक मैथ तो हम सबको ही आता है यार, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केआईटी में, अगर किसी भी कॉलेज में केआईटी भी क्रैक करना है, इतना आपने कुछ तो मैथ्स अच्छा खासा पढ़ा ही होगा, राइट। उतना मैथ्स बहुत है डीएसए क्रैक करने के लिए, कंपनी के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। लेकिन आपको चाहिए यार कि मुझे वर्ल्ड फाइनलिस्ट में जाना है, एसीएम आईसीपीसी क्रैक करना है, गूगल फेसबुक क्रैक करना है, तो आप मैथ्स पढ़ते रहो। उसके भी आपको इतने सारे यूट्यूबर, इतने सारे रिसोर्सेज वो बता देते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ना है, ये वाला एक्सपेक्टेड नंबर वाला, ये वाला थ्योरी पढ़ना है। वो सारे रिसोर्सेज से आप पढ़ लो तो हो जाएगा। ऑलराइट गाइस।
guys, it was great talking to you. Great questions.